دوسری بات یہ کہ اگر جس کو میزل ایک مرتبہ ہو جاتا ہے یا چکن پاکس ایک دفعہ ہو جاتی ہے، وائرل ڈیزیز کی خوبی بھی ہے کہ اگر یہ ونس ٹائم ہوتی ہے صرف یہ، اگر ایک مرتبہ یہ اٹیک ہو جاتا ہے تو سیکنڈ ٹائم یہ نہیں ہوتا، کمپلیٹ اینٹی باڈی ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور وہ سیف ہو جاتا ہے۔ اچھا لیکن بیسکلی میزلز ہے کیا چیز اور یہ کیوں ہوتی ہے ہماری باڈی میں؟ میزلز یا یہ چکن پاکس یہ کیوں ہماری باڈی میں ہو رہے ہوتے ہیں، کیا وجہ؟ میزل اصل میں یہ ایک لیٹن ورڈ ہے، لاطینی ایک ورڈ ہے یہ، جس کا مطلب ریش کا ہوتا ہے، دھانا، یعنی ایک ریش ہو گیا، ایک چھوٹا سا اسپاٹ بن گیا، اس کو ہم کہتے ہیں ملی چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں، یہ اس سے لفظ نکلا تھا نا، تو اس کے بعد پھر یہ ڈیولپ ہوتے چلے گئے، پھر یہ دانے اس میں بخار ہو گیا، رننگ نوز ہو گیا، کمپلیکیشن سب چیسٹ کی ہوتی ہیں، اپر ریسپیکٹ کی، اس میں دانے نکل آتے ہیں، ریشز نکلتے ہیں، یہ خاص ریڈش اسپاٹس ہوتے ہیں یہ، جو کہ اندر اس کے اوپر سے ریڈ ہوں گے یہ، اور اندر کے سائڈ میں اس کے بلوش وائٹ اسپاٹ ہوتا ہے، ایک ٹپیکل ریش ہوتا ہے، یعنی ہم تو لازمند ایکسپیرینس ہوتا ہے، ہم تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ریشز چکن پاکس کے ہیں یا یہ کہ یہ میزل کے ہیں یا کس چیز کے ہیں، یہ ڈائگنوسٹک ہوتے ہیں یہ۔ اس کے علاوہ ایک تھوڑا سا جو ڈاکٹر یوزلی اوائڈ کر دیتے ہیں، نہیں دیکھ پاتے انسپیکشن پہ، ایک بڑی خوبصورت سائن ہوتی ہے، کاپلک اسپاٹس کہلاتی ہے، وہ ٹپیکل ہیل مارک ہے میزل کا، وہ ان سائڈ چیک اور ٹنگ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خاص اسپاٹ ہے، ہم ذرا سا منہ کو کھلواتے ہیں بچے کا اور ہم دیکھ لیتے ہیں کپڑے کو تو وہ میزل اسٹیبلش ہو جاتا ہے، لیکن باقی اس کی جو ہے جو سائن سمٹم اس سے بھی ہم ڈائگنوز کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا لیکن میزلز جو ہے یہ الرجی تو نہیں ہوتی ہے نا؟ ہاں بہت اچھی بات ہے، بہت سے لوگ آتے ہیں ایسے دانے نکل گئے، لوگ بھی کہتے ہیں کہ الرجک ہو رہی ہے لوگوں کو، لیکن یہ الرجک نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی ہاں، کہ وہ الرجی نہیں ہوتی، الرجک نہیں ہے، الرجی نہیں ہوتی۔ کس طرح سے پہچانے کہ جی میزلز جو ہے، ہم کس طرح سے جانیں گے کہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں یہ الرجی ہو رہے ہیں، تو کس طرح سے ہم اس کو سمجھیں، کیا اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اس بیماری کے؟ بہت ہی اچھی بات ہے، اس میں دیکھیے ایک ٹیپیکل کہانی اس میں ہوتی ہے کہ یوزولی ایک تو بچے اب آپ لے لیں 4-5 منتھس کے ابو کے بچے ہوں گے، اس کے اندر اس میں بخار آئے گا، ٹمپریچر ہوگا، اس کے ساتھ ان کے جو ہے رننگ نوز ہوگی، یعنی آپ فلو لائک کمپلینس ہوتی ہیں، یعنی جیسے فلو، پہلے بخار ہوگا، پھر فلو ہوگا، ناک بہنی شروع ہو جائے گی، بچوں کی ناک بند ہو رہی ہے، پھر اس کے ساتھ کھانسی شروع ہو جائے گی، کفی خاص قسم کی ٹیپیکل کف ہوتی ہے، ہاکنگ کف کہتے ہیں ہم لوگ اسے، وہ اس میں ڈیولپ ہو جاتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ٹمپریچر جو ہوتا ہے وہ بالکل سمجھے کنٹینیوس فیور ہوتا ہے، ہائی گریڈ فیور 102 103۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں ظفر بات کر رہا ہوں، لو سے۔ ظفر بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی۔ جی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی میں یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ضرور بات کریے۔ جی ظفر صاحب، یہ آج کل جو سے یہ ڈینگی اور بخار کا مجھے نہیں چھوٹ رہا بخار، مجھے ڈینگی بھی ہوا ہے، بخار نہیں چھوٹ رہا ہے، بڑی دیر کے یہ بخار نہیں چھوٹ رہا ہے، میں نے علاج بھی کروایا ہے، ٹیسٹ وغیرہ بھی کروائے، نہیں آرام آ رہا ہے اس کا ڈینگی کا۔ جی اچھا، آپ کو بخار ہوا ہوا ہے، ڈینگی بخار ہوا ہوا ہے آپ کو؟ ہاں جی، ڈینگی بخار۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے، علاج کروایا؟ ہاں جی علاج کروایا، نہیں آرام آ رہا ہے، باہر سے بھی علاج کروایا ہے۔ اچھا ہاں جی، وہ ٹھیک ہے، نہیں علاج ہو رہا۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ اتنے ڈس اپوائنٹڈ نہ ہو، ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں کر لیجئے کہ کوئی بھی بخار ہو، ان کی چند کنڈیشن ان میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، تو وہ کنڈیشن جو ہوتی ہے ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ڈینجرس ہے یا نان ڈینجرس۔ ایکچولی وہ بخار یا وہ ڈینجرس نہیں ہوتا، اس سے جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے وہ ڈینجرس ہوتی ہے۔ ڈینگی وائرس کو ہم ڈینجرس اس لیے کہتے ہیں کہ خاص قسم کے پلیٹلیٹ کاؤنٹس ہوتے ہیں، ایک ہمارے جسم کو خاص حصہ ڈیفینسو میکینزم میں، اور بلیڈنگ کنٹرول کرتا ہے ہماری باڈی کو، وہ کم ہو جاتے ہیں، وہ ایک اتنے کم ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک بلو نارمل بہت زیادہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بلیڈنگ ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے۔ بلیڈنگ مراد ناک سے خون آنا، آنکھ سے خون آنا، منہ سے خون آنا، یہ جب مریض دیکھتا ہے تو لازمت پریشان ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے۔ ٹریٹمنٹ صرف اس کا اتنا ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو کمپنسیٹ کر دیں، بلڈ سیلز ہوتے ہیں، پلیٹلیٹ کاؤنٹ آپ لگاتے ہیں، لیکن آج کل تو دیسی طریقہ ہے جو میرے وقتوں میں ڈینگی ابھی نہیں، تقریباً 4 سال پہلے جب یہ آیا تھا تو میری ہاسپٹل میں میں نے بڑا اچھا شروع میں ڈیٹیکٹ کیے تھے یہ، کیونکہ میرا ہاسپٹل ایک ڈائگنوسٹک ہاسپٹل ہے، تو شروع میں میرے ایسے پیشنٹ آئے تھے جو میں نے کہا یہ کیا چیزیں ہیں یہ، لیکن ہم نے ان کو ٹریٹ کر لیا تھا۔ آج کل آپ اس کے لیے بڑے آسان طریقے، پپیتا ہوتا ہے، پپیتا کے پتے یوزولی بہت ہی زیادہ سوٹیبل ہوتے ہیں، کیلا، بنانا،
ऑरेंज, ये चीजें जो हैं ये बड़े यूजफुल होती हैं डेंगू वायरस को कंट्रोल करने के लिए, यानी इसका मतलब ये होगा सेल को बढ़ाने के लिए। तो ये बड़ा अच्छा है, मैंने पपीता लोगों को दिए, लोगों ने उन दोनों तो हमारे जहाँ हमारा हॉस्पिटल था और जहाँ पे पपीता लिखा जा रहा था, पपीता ही महंगा कर दिया गया था। तो वो सेल बड़े रिपीटली डेवलप हो गए उनके, तो ये चीज होगी तो इलाज हो जाता है इसका। सही है, ठीक है। अच्छा, हम वापस आ जाते हैं मीजल्स के ऊपर ही। तो इसके फिर मैं ही जानना चाह रही हूँ डायग्नोस्टिक सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह से? तो इसका देखिए रनिंग नोज हो गया ना, फुल लाइक वॉकिंग कफ हो गई है, टेम्परेचर कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन अक्सर बड़ों में भी हो जाता है, 5-6 महीने के बच्चों में नहीं होता, बड़ों में भी? बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। तो ये यहाँ से स्टार्ट लेके ये किसी एज पे भी हो जाएगा। अच्छा। लेकिन यूजुअली चूंकि 5 या 6 या 7-8 महीने पे हम चूंकि यूजुअली वैक्सीन लगा देते हैं तो कुछ बच्चे सेफ हो जाते हैं इसके अंदर। अच्छा। लेकिन जिनको वैक्सीन नहीं लगाई जाती, फिर ऐसा होता है कि फिर वो जो माहौल से हट जाते हैं वो बच्चे, यानी ये खास माहौल है जैसे इलाके, ये चूंकि एपिडेमिक डिजीज कहलाती है, यानी ये स्प्रेडिंग होती है, यानी अगर एक जगह आई है ये बीमारी, अगर 2 बच्चे अगर मीजल के हैं तो वो समझ लो पूरे घर में फैल जाएगी बीमारी जो होगी। हाँ। इसी तरह अगर बच्चे जो है कहीं बाहर बैठे हुए हैं या किसी गैदरिंग में है तो हम उनको अवॉइड करेंगे, तो ये एपिडेमिक हो जाती है। हाँ। ये तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए। तो ये पहले दाने उनको डेवलप हो जाते हैं, मैंने पॉपुलर स्पॉट्स हो गए, जैसे रैशेज हो गए। अच्छा, रैशेज भी टिपिकल होते हैं, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो खास तौर पर जो रैशेज होते हैं सबसे पहले फॉरहेड पे आएंगे इधर। अच्छा। यहाँ जाहिर होंगे इधर, फिर उसके बाद दूसरे दिन इधर चेहरे पे आएंगे, फिर उसके बाद बॉडी पे आएंगे। ये टिपिकल पैटर्न। बॉडी पे सबसे बाद में आते हैं? बॉडी में बेहतर बाद में आएंगे। ठीक है। एलर्जी की कंडीशन दूसरी वो पहले बॉडी पे आएंगे। पहले बॉडी पे आएंगे। तो ये मतलब छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं। हाँ। तो बड़े अच्छे इनको होते हैं। इसके अलावा हम जब टेस्ट करा लेते हैं तो उसमें जैसे हमने टाइफाइड के टेस्ट करा लिए और दूसरे करा लिए तो वो नॉर्मल निकलते हैं। ठीक है। इसलिए कि ये वायरस है। हाँ। इसमें यूजुअली काउंटिंग जो होती है प्लेटलेट है, जो दूसरी थोड़ी बहुत कम होती है, इन्फेक्शन हो रहा होता है, तो ये इससे हमें डायग्नोस कर लेते हैं। टिपिकल फाइंडिंग नहीं होती, यानी हम जो कहेंगे कोई ऐसा हम वैक्सीन ले लें या ऐसी कोई टेस्ट लेके मीजल का टेस्ट करा लें तो मीजल ऐसा नहीं निकलता। हाँ। मीजल्स में और चिकन पॉक्स में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, दोनों वायरस इन्फेक्शन है। ये मीजल हाईली जो है कॉन्टेजियस डिजीज में आती है, चिकन पॉक्स भी कंटेजियस डिजीज होती है, वो भी एक दूसरे के साथ फैलती है। वो चिकन कॉलरा एक अलग एक वायरस है, चिकन के नाम से होता है, वो अलग चिकन। तो वो एक जगह चिकन पॉक्स एक होती है, स्मॉल पॉक्स, वो एक अलग चीज है, लेकिन इससे मिलता जुलता ये वायरस होता है। इसमें भी स्पॉट्स बनते हैं, इसमें ये होता है कि इसकी जरा अलग डिजीज होती है, इसमें ब्लिस्टर बन जाएंगे, ब्लड जिसमें पानी के एक तरह से बुलबुले से छोटे छोटे स्पॉट बनते हैं। तो वो जो पानी वाले जो होते हैं, जो पानी वाले होते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं। अच्छा। वो जब पानी जहाँ गिरेगा वो इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। ठीक है। मीजल में इस पानी वाले ऐसे कोई रैशेस नहीं होते, सब में रेडिश होंगे, वो उसके बाद रिड्यूस हो जाएंगे। जबकि चिकन बॉक्स पे जो पानी के होंगे पूरी बॉडी पे, उनमें जलन ज्यादा होगी, बर्निंग सेंसेशन ज्यादा होती है, इचिंग भी होगी, लेकिन बर्निंग ज्यादा, कपड़ा लगेगा, पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम। क्या करें डॉक्टर साहब फिर वो लोग जिनको इचिंग हो रही है वो किस तरह से उसको डील करें? सपोर्टिव थेरेपी होती है इनकी, बाकायदा जो एंटीवायरस ड्रग होते हैं बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप वो ना भी दें तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ इनको सपोर्टिव थेरेपी दें, बर्निंग से बर्निंग के कुछ ड्रग दे दें, एलर्जी की एंटी एलर्जिक दे दें, और इस तरह के कुछ रिलीफ करने के लिए सेडेटिव कुछ दे दिए जाते हैं, एनर्जेटिक दे दिए जाते हैं। ये होता है। यूजुअली इनमें एस्पिरिन नहीं दी जाती है। अच्छा, ठीक है। दोनों कंडीशन में एस्पिरिन नहीं देते हम लोग। अच्छा, हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट के ऊपर आ जाते हैं, तो उसको किस तरह से हमें ट्रीट करना चाहिए? अच्छा, और साथ साथ मुझे बताएं कि जो लोग इसको नहीं ट्रीट करते सही तरीके से, जो इसको बिल्कुल इजीली लेते हैं कि यार ये तो सबको होता है, सही, फिर उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एक तो ये होता है कि जब हम लोगों को ये बता देते हैं कि भाई इसका ये वायरस होता है, ये सेल्फ लिमिटेड डिजीज है, खुद ब खुद खत्म हो जाता है, तो बाद लोग इसका इलाज नहीं कराते। लेकिन इसका इलाज बहुत जरूरी है। इसकी वजह ये कि जब एक नाक प्रॉब्लम में आई, गला प्रॉब्लम में आया, इसी तरह सीना प्रॉब्लम में आया, तो यही बीमारियों में डेवलप हो जाता है। मीजल तो वायरस तो चला जाता है, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंट बॉडी का इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि दूसरे वायरस या दूसरे जरासीम फौरन लग जाते हैं, तो लिहाजा मीजल से सबसे ज्यादा डेथ होती है। आज भी मीजल से सबसे ज्यादा डेथ होती है, आज भी डेथ होती है, कल भी थी, लेकिन पहले की निस्बत अब ज्यादा जो है वो इन पर कंट्रोल हो गया है। इसकी वजह की अवेयरनेस बढ़ गई है हमारी, लोग फौरन घरों के बच्चे फौरन डॉक्टरों के पास ले आते हैं, अवेयरनेस आ गई है, तो अब तो हम उसको कंट्रोल कर देते हैं। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, 2 बड़ी कॉम्प्लिकेशन है मीजल्स की, एक नमूनिया, एक मेनिंजाइटिस है, यानी गर्दन तोड़ बुखार। यानी ये गर्दन तोड़ बुखार का इसमें जरासीम आ गया, ये सीधा ब्रेन में गया, ये सबके जरिए, और ब्रेन में डेवलप करके ब्रेन की बीमारियां जो है पायोजेनिक है, दूसरे मेनिंजाइटिस बनाता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है। इसे नमूनिया वो एक अलग कॉम्प्लिकेशन है। तो हमें चाहिए कि हमें फौरी तौर पर इसका कंट्रोल करें। अगर मीजल के रैशी खत्म हो गए और बुखार वगैरह कुछ नहीं है, खांसी आज तक खत्म हो रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ जा रहा है।
अगर रैशी डेवलप हो गए और रैशी डेवलप होने के बाद जो दाने खत्म हो गए लेकिन बुखार कंटिन्यू है तो ये कॉम्प्लिकेशन में जा रहा है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखे, डॉक्टर से मशवरा करते रहे। मैं समझता हूँ हम डेथ रेट पर काबू पा लेंगे, मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो जाएगा। लेकिन जिसको मीजल निकल आया एक दफा उसको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन जो लोग नहीं जिनको निकले उनको वैक्सीन लगानी कभी चाहिए। ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि एक दफा मीजल्स निकल आई है फिर बाद में वो रिपीट हो गई है, कभी ऐसा होता है? ऐसा कभी भी नहीं हुआ, नहीं होता कभी क्योंकि ये नहीं वायरस एक ही दफा एक ही अटैक करता दफा है। आएगा ये। अच्छा, जैसे चिकन पॉक्स का है या इसका कोई भी वायरस है, यूजुअली एक ही दफा आता अच्छा, और है। इसका आना जरूरी होता है या बात कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी जरूरी नहीं नहीं है? है। तो ये भी कहते हैं, मैंने हमारे तो मिथ्स भी बहुत सारी है ना, हमारे तो ये लोग ये बातें भी कर रहे होते हैं कि जी नहीं नहीं इसका होना बहुत जरूरी होता है, चिकन पॉक्स का ये होना सच में कंजर्वेटिव माइंड के लोग होते हैं कि भाई हो जाए होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन इसलिए इस हवाले से उनका सेंस होता है कि ये मर्तबा हो गया तो हमेशा के लिए सेफ हो गए। सही। जिसको मर्तबा नहीं निकला एक मर्तबा तो वो खतरे पे तो है, हाँ। रिस्क पे तो है, वो तो रिस्क कवर करते हैं वो कि भाई एक मर्तबा आगे बस आप सेफ हो गए। अच्छा, लेकिन जैसे जॉन्डिस है, ये भी एक बीमारी है, ये रिपीट हो सकता है? जॉन्डिस की देखिए अलग अलग किस्में होती ठीक हैं। है। इसी तरह वो कोई भी जॉन्डिस जो बहुत से जो इन्फेक्शन डिजीज में आ जाता है, इन्फेक्शियस डिजीज में आती है, इन्फेक्शन में जो भी आएगा वो रिपीट हो जाते हैं, वो रिपीट, लेकिन वायरस में रिपीट नहीं होते हैं। तो ये मीजल्स जो है ये एक वायरस है। ये एक वायरस है। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, अब हम जरा थोड़ा सा इसकी ट्रीटमेंट पर आ जाते हैं कि हमें किस तरह से ट्रीट कराना चाहिए, किस तरह से इसका क्योर करना चाहिए? बिल्कुल, ट्रीटमेंट इसका देखिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, हमें सपोर्टिव थेरेपी कहलाती है ये, यानी सपोर्ट करना है, क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है उसके हिसाब से देखना होता है। जैसे फट के बुखार है तो आपने उसके हिसाब से एंटीबायोटिक दे दी, कोई ड्रग दे दी, ब्रूफेन है या कोई और आपने खैर में ब्रांड नेम दे, तो कोई भी ऐसे ड्रग दे दी आपने ना। इसी तरह उनको जो है दाने हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो, अगर वो कह रहे मरीज कह रहा है कि भाई मुझे दाने पे ज्यादा खारिज है, थोड़ा बहुत आपने ट्यूब श्यूब दे दी, लेकिन अमूमन इनको नहीं लगाते कुछ भी। ये सारी बीमारी खुद खत्म होती है। और ये कितने दिन का पीरियड होता है इनका? बिल्कुल सही है। ये देखिए इसमें 3 से 4 दिन से लेके 12 दिन तक हो जाता है। 12 दिन तक? जी हाँ, इसमें 12 से 14 दिन भी होते हैं, लेकिन आप 3 डेज से आप ले लें, स्टार्ट ले लें, 3 to 4 डेज से लेके 14 डेज तक होता है ये। अच्छा। क्योंकि 3 से 4 दिन में रशीद ही होते हैं, फिर वो रशीद खत्म होंगे, उसके बाद जो होगा फिर वो सीने के चेस्ट प्रॉब्लम वो आस्ते आस्ते सेटल होते हैं। अच्छा, मीजल्स भी अलग अलग किस्म की होती है, यानी जैसे 3 दिन का बुखार खत्म हो उसको 3 डेज मीजल हो गया, 4 डे तो 4 डे मीजल हो गया, 7 डे मीजल हो गया। अच्छा। तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्में निकलती हैं, तो वो उसी हिसाब से होता है। तो अब हमने क्योंकि 9 डेज मीजल भी हो गया तो लिहाजा हम 14 डेज तक आ गए, लेकिन यूजुअली 10 डेज 12 डेज हो जाता है। अच्छा, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स तो कोई नहीं होते फिर इन सब चीजों के? अगर बहुत सारे लोगों के दाने इसके निशान भी रह जाते हैं, वो लोग क्या करें? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए जो दाने मीजल्स में निकल रहे हैं या जो दाने चिकन पॉक्स में निकल रहे हैं, इन पे किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। इन पे अगर आप कोई एप्लीकेशन लगाते हैं तो यूजुअली और खराब हो जाते हैं, दाग धब्बे रह जाते हैं। तो इन पे मेरी एडवाइस यही है कि कोई भी दाने रशीद हो ये अपने आप ही खत्म होंगे, इन पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है सर जी, हमें जाना है एक ब्रेक पर। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर आबिद हमारे साथ हैं, आप लोग भी हमारे साथ ही रहिएगा। और अगर आपको कोई किसी बात जानना है बच्चे के हवाले से तो जरूर कॉल करके डॉक्टर साहब से बात करिए। तो फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं। और बच्चे इतनी प्यारी चीज होते हैं, मासूम होते हैं बच्चे, और बच्चों को कुछ हो जाए, अगर इवन उनको थोड़ा सा वायरल अटैक ही हो जाए, उनको कोई भी बीमारी हो जाए, थोड़ा सा खांसना ही शुरू कर देते हैं, तो हम लोग परेशान होते हैं कि क्या हुआ इसको, क्या हो गया। जाहिर होता है कि बस ज्यादा मारना पड़ेगा। एक्टिव है आजकल के बच्चे, उनको थोड़ा सा कुछ होता है तो फौरन उनसे परेशान। बिल्कुल सही कह रही हैं। बात करते मुझे बताएं, जर्मन मीजल की कोई चीज होती है, वो क्या होती है? बहुत अच्छी बात करिए। जब यूजुअली हम बच्चों की मीजल की बात करते हैं तो हम यूजुअली अवॉइड कर जाते हैं, बड़ों तक नहीं बात पाते। जर्मन मीजल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ये जो है बच्चों का मीजल होता है। हाँ। एक रूबेला होता है, रूबेला वायरस होता है, ये भी वायरस होता है। अच्छा। ये MMR जिसे हम कहते हैं, मीजल मम्स रूबेला मीजल। तो ये एक्चुअली जो रूबेला है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बड़ों में होता है। ये तो बच्चों का मीजल हो गया, बड़ों का हो गया। तो बड़ों का मीजल जो है वो रूबेला मीजल कहलाता है। ये यूजुअली अगर ये फीमेल में हो जाता है तो ये बहुत सी नॉर्मलिटी पैदा कर देता है, और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हो जाता है तो बहुत ही हमारे लिए डेंजरस है। देखिए एक मतलब हमने डिस्कस किया था स्पेशल बच्चों के हवाले से, तो जहाँ देखिए जॉन्डिस हेपेटाइटिस कुछ किस्म का जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। स्पेशल बच्चे डेवलप हो जाते हैं, वो तब्दीलियां पैदा कर देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक नॉर्मलिटी डेवलप करते हैं। उसमें जर्मन मीजल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह ये कि नॉर्मल बच्चे डेवलप हो जाते हैं, स्पेशल बच्चे डेवलप होते हैं, इनके दिमाग छोटे रह इसकी जाते वजह से हैं। जर्मन मीजल्स जर्मन मीजल की वजह से बहुत ही डेंजरस माना जाता है ये, और इसकी वजह से कुछ और चीजें जैसे इबॉर्शन हो जाते हैं, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, ये सब इनके इन्फेरिटी डेवलप हो जाती है। ये प्रेगनेंसी में ही अटैक होता है या मतलब यूजुअली